All right, everybody. So this is question number one in today's lesson. So today we are going to practice some tricky cases or some simple cases in Cambridge examination. You can see one thing that they say that PQ is a vertical pole. So this is a vertical pole. So it means that on a horizontal ground, it will make a 90 degrees angle. A rope is attached from the top of the pole P to a point on the ground R. P to R is 20 and RQ is 11 and RQP is 90 degree. Show that P to Q is 16.7. So we are not going to use this answer. हमने answer को इस्तेमाल नहीं करना. We are going to find out this one of the side, and whenever you have two sides out of three in a right angle triangle, it means that that's a Pythagoras theorem. So you can see that this question started easy, so it might end harder. So remember one thing, that is what the pattern of the question is. So we know that 20 square, it should be equals to 11 square plus PQ square. That is what the technical definition of a Pythagoras theorem is. So I'm going to split this 20 square minus 11 square is equals to PQ square. Instead of writing square on the right side, I'm writing square root on the left side. So let's use square calculator now. So if I press square root 20 square minus 11 square, so the answer is 3 square root 31, which is PQ, and technically this answer is in third form. And from this year, you can get the question that you have to leave the answer in third form, like examiner can give you that give your answer in the form of P square root Q. So you have to leave your answers like that. Now SND, it is 16.70 on my calculator screen. So PQ is equals to 16.70329, such a big answer. But examiner has suggested me something here, and that is important to get a full credit here. You have to correct to two decimal places. You have to correct your answer till two decimal places. Not in every question, specifically this part. So my second decimal place is 0. So after 0, there is a 3. So I can write that PQ is equals to 16.70, and I can write here, it's shown. The result is shown. So that's how you attempt the particular question. Okay. So next part is, they say that now beta we have the value of PQ. So it means that we can use that PQ value in the later parts as well. So you can see one thing, the value of PQ is 16.7. So I can write 16.7 here. Now, as a student, you need to understand one thing. They say that a second rope is attached from point P to S. Okay. So this is my previous triangle. Left side is my previous triangle, right angle triangle, which is given in the part A. And this point S is attached to the same pole. So it means that this is my new triangle, which is same like the other one, but not in terms of the dimensions. Okay. Okay, let's see what happens next. Okay, so the examiner is saying what? Examiner is saying that RS is 30. The angle of elevation of P from S is 36. It means that stand at P, always stand at P and look at S. So stand at P, angle of elevation of P from S. Okay, sorry, my bad. So stand at S and look at P. Look at P is 36. So it means that the angle of elevation of P from S. So from S, so at S, I am standing here. I want to see point P. So this angle is 36, which is given to me. 36 degree. Now they say that calculate the angle RQS. So RQS is the requirement of this triangle. So technically speaking, क्या हो रहा बेटा? अच्छा, okay. Now I'm going to understand that this thing, that I'm going to find out this angle here, which is angle RQS. So all I need is, this is a triangle in front of me, but honestly speaking, you can see one thing, that in this triangle, I cannot find out this angle. Uh, all I need is the angle QS, because they didn't say anything about this thing,
दैट दिस एंगल क्यू इज 90, इन्होंने हमें ये नहीं बताया है, ठीक है। और क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट क्यू एस, so we are going to find out QS. So let's extract the triangle outside. And which triangle am I extracting outside? The blue one, okay? That's the blue one triangle. So it is P, that is Q. This is 36 and this is S. This is 16.7 and I'm finding QS. So QS is what? Technically speaking, this is my perpendicular and that is my base. So tangent theta. So tangent 36 is equals to perpendicular divided by base. So QS क्या है बेटा? QS आएगा 16.7 divided by tangent of 36. So according to the fraction, 16.7 divided by tangent 36. तो tangent 36 पे इसको divide कर दें. So आंसर आ रहा है 22.985. It is 22.985. So this is not my final answer. So that is the reason I'm going to take 3 decimal places here. Okay, because it can help me. Okay, so now this is my 22.385. Sorry, 985. 985. So what I'm going to do here now, I am going to pick this green triangle now. I'm going to pick this green triangle outside. तो अब मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे बाहर निकालूंगा. सो ग्रीन ट्राइंगल को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. और यहाँ पे हो गया बेटा R, ये हो गया बेटा Q, और ये हो गया बेटा S. यहाँ पे आ गया बेटा 11 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा 22.98, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 30. अब यहाँ पे देखें जी, फॉर एग्जांपल सर वाई 3 सिग्निफिकेंट, क्या मतलब 3 सिग्निफिकेंट? अभी तो 3 सिग्निफिकेंट का कुछ भी नहीं किया. पेपर में रूल होता है कि आपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल में देना, आंसर 3 सिग्निफिकेंट में देना होता है. ये 3 सिग्निफिकेंट में से नहीं दे रहा बिकॉज दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, ठीक है. सो एग्जामिनर इज आस्किंग मी एंगल क्यू. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, वो अपने आप से यहाँ पे 90 बना देंगे. आप अपने आप से 90 नहीं बना सकते जब तक गिवन ना हो, ठीक है. तो हमें एंगल क्यू निकालना है. एंगल क्यू निकालने के लिए आई हैव 3 साइड्स एंड नन ऑफ द एंगल इज गिवन. आई वांट टू फाइंड आउट वन एंगल, सो आई एम गोइंग टू यूज कॉस रूल. वेल डन खुशी. सो यू कैन सी वन थिंग कि कॉस रूल के लिए मैंने आपको कल भी पेपर में कहा था कि लेट सपोज पेपर में आपको ए स्क्वायर वाला गिवन होता है, तो आपने यहाँ पे कोसाइन रूल लगाना है. और कोसाइन रूल किसे कहते हैं हम लोग? 3 sides and 1 angle is used in cosine rule. I have 3 sides available. So you can see one thing, मैंने आपको कहा था कि आप इसको नेम्स चेंज कर सकते हैं बिकॉज कोसाइन रूल के अंदर हमारे पास पेपर के अंदर फॉर्मूला गिवन है, लेकिन फॉर्मूला इज गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. तो फॉर्मूला गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर की फॉर्म में. ये फॉर्मूला शीट में लिखा होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos of what? Cos of a. Now I want to find out cos q. So instead of cos a I'm writing cos q. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा q स्क्वायर. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाकी के 2 डिजिट आ जाएंगे, वो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 2rs. तो मैंने फॉर्मूला शीट की हेल्प से आपको करना सिखाने की कोशिश की, ठीक है. अब हमें cos q चाहिए. तो cos q निकालने के लिए हमें इसको सब्जेक्ट मेकिंग करना है, और कल की क्लास में मैं ये सब्जेक्ट मेकिंग सिखा चुका हूँ कि cos q इज इक्वल्स टू व्हाट? cos q आएगा बेटा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2rs नीचे डिवाइड में भी आएगा, ठीक है. ये मैंने कल की क्लास में सिखाया था, अभी किसी को नहीं आता तो वो जाके देखे फिर, ठीक है. अच्छा जी, लास्ट में आई नीड व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ द आंसर. तो अभी क्यू वैल्यू पुट करते हैं. तो स्मॉल क्यू इज 30 स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 30 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 22.98 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज 11 स्क्वायर माइनस 2, माइनस डिनोमिनेटर में बेटा भूलना नहीं, माइनस आर विच इज 22.98 और ब्रैकेट में आएगा 11. चलें जी, थीटा इज इक्वल्स टू, बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा है 119.7. तो आई एज्यूम कि आप सब ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे 119.75, एक बच्चे ने कहा मुझे. तो अगर 75 है तो राउंडिंग आपने ठीक करनी है टिल 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि आंसर शुड बी इन 1 डेसिमल प्लेस. सो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूंगा 119.8 डिग्री, ठीक है जी. इट्स नॉट 75, इट्स 71. अच्छा जी, तो यहाँ पे एक डाउट है, तो यहाँ पे देखें जी. अच्छा रामीन, आपने 120 पे क्यों राउंड किया? एंगल टिल 1 डेसिमल प्लेस होता है. सर वो जो ग्रुप में वेक्टर्स वाला क्वेश्चन शेयर हुआ था वो एक्सप्लेन, बेटा वो एक्सप्लेन हो जाएगा. वो आपने मुझे क्वेश्चन यहाँ पे भेजा हुआ है, मैंने आपको कहा है कि आप 1-2 दिन सब्र करो. वेक्टर्स की स्ट्रीम जो है ना, इसके बाद मैराथन जो है वो वेक्टर्स का है, ठीक है.
बेरिंग्स के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जी, मैंने डाला हुआ है बेरिंग इसमें। तो यहाँ पे अगर 11.75 आ रहा है, अभी आंसर जरा मुझे क्लियर कर दें कि 11.75 वरना मैं खुद कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँ। आई एज्यूम के 716 इज द राइट आंसर। सो यूज 3 डेसिमल प्लेसेस फॉर क्वेश्चन 5 QS। सो QS के लिए आपने 3 डेसिमल प्लेसेस, अब मैंने इसलिए इस्तेमाल किया तो ये 7 ही आता है, ठीक है, ये 8 नहीं आता क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है कैलकुलेटर में, तो ये 7 आएगा। अच्छा, वाई आई यूज 3 डेसिमल प्लेसेस बिकॉज दिस वॉज देन माई फाइनल आंसर, ठीक है। सो टेक एटलीस्ट 2 to 3 डेसिमल प्लेसेस फॉर द आंसर, ठीक है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र भी था, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लें बेटा। देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, वो कह रहा है कि अ थर्ड रोप इज अटैच फ्रॉम P टू पॉइंट T। बिफोर प्रोसीडिंग टू एनीथिंग वी नो दैट वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल, हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। सो इस एंगल को निकालने के लिए पहले ही आप लिख लो कि दिस एंगल, एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है, P T Q इज इक्वल टू 180 माइनस 97 माइनस 40। तो 180 में से 97 और 40 को निकालें तो 43 आता है, थैंक यू रामी। तो ये हो गया बेटा 43। अब एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट PT। ओके, सो PT belongs to this side and this is the corresponding angle to this one, and I have 16.7 available and angle 43 is also available, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल हुआ। So यहाँ पे देखें जी, yeah, I can show you, just give me a second. So I'm finding here PT. So PT is unknown, so let's write PT in the numerator. The denominator should be sine 97. It should be equals to 16.70 divided by sine of 43. Now beta PT, it should be equals to 16.7 multiply with sine 97. Sine 97 will be multiplied with this thing divided by sine 43. Now use your calculator and tell me what is the final answer. That is what a sine rule is. ये sine rule है. Well done, Mohit. Good job. Okay, Hania Khan says it's 24.3. So it's 24.3. बेटा मुझे आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में बताया करो, अच्छा 1 डेसिमल प्लेस में नहीं। तो यहाँ पे आप भी मैं आंसर लिख देता हूँ 24.3। अच्छा, क्योंकि ये एंगल नहीं था, अच्छा ये 304 आ रहा था, तो 1 डेसिमल पे नहीं, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करेंगे, इट्स अ लेंथ। तो 24.3 इज अ थर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज आफ्टर 3 इट्स अ 0 विच इज लेस देन 5। सर साइन 40 नहीं लेंगे बेटा, पहली बात तो साइन 40 क्यों नहीं ले सकते, साइन 40 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 16.7 के सामने एंगल 43 है, और ये साइन 40 के सामने जो साइड है TQ वो हमें अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम अब हम TQ निकाल सकते हैं, लेकिन TQ वाज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप अली इट्स क्लियर। चलें जी, ये प्रीवियस क्वेश्चन मुझे किसी ने कहा कि सर ज़रा दिखा दें, मैंने ये क्वेश्चन दिखा दिया आपको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, मैं इसके बाद ये भेज भी दूंगा। सर देयर इज़ अ मिस्टेक, द आंसर इज 23.3। चलो देख लें बेटा, आप लोग कर लें, आप लोगों ने किया, नहीं तो फिर मैं कैलकुलेशंस खुद कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करें तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ आएगी कि हम लोगों ने कैलकुलेटर्स को मैथ्स में इस्तेमाल कैसे करना है। या अवनीश, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अवनीश ने कुछ शेयर किया है तो वो खोल के देख लेते हैं। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया, ओके। अच्छा, someone was asking me to show the previous question, so that is the reason. Okay, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा जी, अब आ गया जी बेटा बेरिंग का क्वेश्चन। अब बेरिंग का क्वेश्चन जो है ना वो बेटा नॉन कैलकुलेटर पेपर में जो है ना एक्सपेक्टेड होता है। अब ये देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, प्लीज़ ज़रा मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और जस्ट बहुत अटेंटिवली बैठना है। जब भी आपने बेरिंग का क्वेश्चन देखना है तो आपने पेपर के अंदर साइड पे मुझे बना लेना है या अपने आप को बना लो। यस आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे। अच्छा, द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ 3 टाउन्स A, B and C। बेरिंग इज ऑन, B is on a bearing of 72 from A। It means that look at B from A is 72 degree. So look at B from A, it means that this angle is 72 degree. Now C is on a bearing of 150 from A, it means that look at C from A is 150. So look at C from A, it means that this total angle is 150.
This total angle is 150. So I got the idea and I'm sharing this portion here. मैं ये portion share कर रहा हूँ. That this total angle is 150. So if this total angle is 150, I can get this little piece by subtracting 72 from it. So this is my working 150 minus 72. So 150 minus 72, it is 78. This is 78. All right. Before proceeding to the question, I am gonna do something more. ठीक है, मैं अब यहाँ पे कुछ और भी करूँगा. ठीक है. Now they say that AB is 300 kilometers. So this length is 300 and AC is 280. ये 280 है. Okay. Find the bearing of A from C. So it means that look at A from C. So where is A and where is C? Just see. This is point A and this is point C. Let's say both having knots. So let me draw a knot here as well. So let me join the line here. So you can see that this angle is 150 given in the question. So sum of co-interior angle is equals to 180 degree. So 180 minus 150 is 180 minus 150 is equals to 30 degree. So this angle is 30. So look at A from C. Look at A from C. So now I am standing here and I want to look at C. So I'm allowed to move only clockwise. So this much bearing, this much clockwise I have to move. So it means that 360 minus 30. So the answer is 330 degree. 210 बेटा गलत आंसर है फातिमा अजमल. दिस इज रॉन्ग आंसर. 210 गलत बताया आपने. मैंने बहुत स्लो एक्सप्लेन किया तो आई गेस समझ आ गई है सब. ठीक है. द लेटर पार्ट इज कैलकुलेट बी सी. सो देखें जी, यहाँ तक आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी तो नॉन कैलकुलेटर में ये आ सकता है. ठीक है. कैलकुलेट बी सी. सो बेटा टेक्निकली स्पीकिंग बी सी इज स्मॉल ए. सो वी आर गोना यूज कोसाइन रूल नाउ. सो कोसाइन रूल के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए स्क्वायर आपने फाइंड करना है तो ए वुड बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द राइट साइड. ए वुड बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द राइट साइड. तो स्क्वायर रूट ऑफ द राइट साइड तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी है? मेरे पास 280 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 280 इंटू 300 इंटू कॉस ऑफ 78. So square root 280 square plus 300 square minus 2 ब्रैकेट 280 ब्रैकेट. बेटा कोई भी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं. cos of 78 क्योंकि हमने निकालना है cos of 78. cos of 78. So the final answer in my calculator is at the small a which is termed as BC, it is 365.33. So till 3 significant figure, it is 3 significant figure. BC is equals to 365. So the my final answer is 365. देखिए बहुत enough working इन्होंने enough working की जगह दी थी. And keep your answer above the dotted line. Dotted line से बिल्कुल अपना आंसर जो है ऊपर रखेंगे. सर can't we use sign rule also be applied? So बेटा can you see one thing? If I want to apply a sign rule, अगर मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करूँ तो मेरे स्टूडेंट्स प्लीज सब देखें जी. अगर मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो व्हाट विल हैपन? देखें जी मार्क्स ज़्यादा हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती भी की होगी क्योंकि इसमें यहाँ पे ये 150 वाला पॉइंट जो था वो ट्रिकी था कि वो टोटल 150 दिया था तो 72 को माइनस करना था उसमें से. अच्छा अगर यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करें तो बेटा क्या होगा? बी सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 78 तो लिख सकता हूँ लेकिन 300 डिवाइड बाय व्हाट क्या लिखूँ? सेम केस विद 280 डिवाइडेड बाय व्हाट में क्या लिखूँ? तो एक इक्वेशन में दो से ज़्यादा अननोन नहीं हो सकते इसीलिए साइन रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता. चलें जी. कहते हैं जी नीचे पॉइंट सी दिया है उन्होंने. कहता है टाउन डी इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी. एंगल ए डी बी इज 120 डिग्री. एंगल ए डी एंड बी इज 120 डिग्री. फाइंड टू पॉसिबल बेयरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए. अब जरा गौर कर लें जी कि ये कह रहा क्या है. कहते हैं टाउन डी इज 1
145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी, टाउन बी से 145 किलोमीटर है। एंगल ए डी और बी जो है, मतलब कि ए डी और बी, मतलब एग्जांपल के तौर पे डी ए डी एंड बी, ये एंगल जो है वो कहते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये एंगल जो है ए डी बी, दिस एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल जो है ये आपके पास 120 डिग्री है। तो अगर मैं 120 बनाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार एंगल ए डी बी है। तो ज़रा सब देखें बेटा आराम से, ए डी और बी, according to the examiner, they say that angle ADB is 120, this is 120 degree, कि ये 120 degree है, and this is how much, town D is 145 kilometer from town B, so this is town D let's say, and this is 145 kilometer। ठीक है जी, अब याद रखें जी, प्लीज अंडरस्टैंड जरूर करें। कहते हैं फाइंड द टू पॉसिबल बेरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए, कि डी की दो पॉसिबल बेरिंग्स क्या हो सकती हैं फ्रॉम ए। पहली बात तो ये, इन द क्वेश्चन यू कैन सी वन थिंग, दैट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए वाज गिवन, सो दैट वाज 72, ये हमें गिवन था 72 डिग्री। एग्री एवरीबॉडी और नॉट, यस और नो? ओके, चलें जी, दैट वाज गिवन। अब वो कहते हैं फाइंड द टू पॉसिबल बेरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए एंड यू मे ऐड लाइंस टू दिस स्केच टू हेल्प यू, कि ये आपको हेल्प कर सके। अब एग्जांपल के तौर पे पहला स्केच तो मैंने ये बना दिया, फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट स्केच। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट स्केच, तो मैं सेकंड स्केच भी बना ही देता हूँ साथ ही। और सेकंड स्केच क्यों बना रहा हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप सेकंड स्केच क्यों बना रहे हैं। बेटा सेकंड स्केच इसलिए बना रहा हूँ कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि लाइन पॉइंट डी नीचे है, हो सकता है वो पॉइंट डी जो है वो ऊपर हो, तो हो सकता है कि पॉइंट डी ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया। अब ये एंगल जो है ये टोटल हमारे पास गिवन है 72 डिग्रीज इन पेपर, पेपर में हमें गिवन है ये 72 डिग्री। अच्छा, ये लेंथ 300 ही रहेगी और ये एंगल 120 ही रहेगा। ठीक है, ये तो चीज़ हम लोगों को गिवन हो गई। सर साइन रूल टू फाइंड एंगल बी, फिर फाइंड द थर्ड एंगल इन द ट्राइंगल। आप ज़रा आराम से ज़रा समझ डालते हैं थोड़ा सा कि हमने करना क्या है पहले। ठीक है, पहली बात तो ये, फाइंड द टू पॉसिबल बेरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए। सो इट मीन्स दैट कि हमें ए से देखना है इन जगह के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एंगल जो है हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज माई केस नंबर वन, हमारा केस नंबर वन ये है। ठीक है, अब केस नंबर वन क्या है ज़रा देखिएगा प्लीज़, कि केस नंबर वन पे हम लोग क्या करेंगे। पहले केस में हमें एक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे अब साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन राइट साइन एक्स डिवाइडेड बाय 145, it should be equals to sine 120 divided by 300. So sine x is equals to 145 divided by sine 120 divided by 300. So x is equals to sine inverse of what? साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? ये आंसर कितना आ रहा है बेटा, बता दीजिए। 24.744। तो 20 साइन, अच्छा नहीं आपने आंसर निकाल लिया, अच्छा डायरेक्ट। तो x इज इक्वल टू 24.74, तो x इज इक्वल टू 24.7 डिग्री। ऑल राइट, तो x की एक वैल्यू आ रही है मेरे पास 27। ठीक है, अच्छा अब ज़रा एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। सर साइन नीचे नहीं होगा इस फॉर्मूले में। बेटा मुझे साइन फाइंड करना था, तो मैं साइन को नीचे क्यों करूं? वट एवर इज द अननोन कीप इट इन द न्यूमरेटर, इफ इट इज एंगल तो साइन को ऊपर रखें। अगर आप साइड फाइंड कर रहे हैं साइन रूल में तो साइड को ऊपर रखें, इट इज ईजी फॉर द सब्जेक्ट मेकिंग। अच्छा, वन एंगल इज 24.7, तो माई फर्स्ट बेरिंग इज 72 प्लस 24.7। तो 72 प्लस 24.7 इज हाउ मच? नहीं नहीं, डायरेक्ट 19 से माइनस नहीं हो सकता। तो ये आ रहा बेटा 96.74। तो हम वन डेसिमल पे लिखेंगे 96.7 डिग्री। अच्छा जी, एक एंगल तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, 96.7 आ गया। अच्छा, और 96.7 इज नॉट अ बेरिंग, तो बेरिंग लिखने के लिए हम लोग लिखना पड़ता है 096.7। ठीक है जी, बेरिंग इज अ 3 डिजिट और 96.7 3 डिजिट नहीं है, क्योंकि 0.7 जो है वो यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है,
अच्छा पहली बेरिंग मेरे पास आ गई। अच्छा दूसरी बेरिंग हमारे पास क्या है आएगी सर? साइन का आंसर तो कुछ और आ रहा है, आप देखिए खुद। अच्छा मैं ज़रा देख लेता हूँ। शिफ्ट साइन इनवर्स फ्रैक्शन 145 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ 120 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 300। सो मेरे पास 24.74 आ रहा है, यही आ रहा है। ज़रा आसिफ आप कैलकुलेटर अपना ठीक करें। अच्छा अब एक बात ज़रा अंडरस्टैंड करें। पहली बात, so what I'm supposed to do if A from C is X, not the inside part like the outer area? So what I'm supposed to do if A from C is X? A, where is, ये आपको कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं समिया? यहाँ पे तो C नहीं है। Sir, is this the only paper we are doing today? It's not the paper बेटा, it's a topical worksheet of trigonometry and mensuration. अच्छा जी चलें आते हैं जी। पहले एक एक हमारा आंसर ये हो गया। अच्छा ये 047 आपने क्यों किया, ज़रा ये भी तो बताइएगा ना प्लीज़ पहले। हाँ जी ये भी बताइएगा। अच्छा अब मैथ्स में बेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अच्छा 72 में से 24.7 माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया ज़रा ये भी तो बताइएगा ना ज़रा फिर। आपने क्यों माइनस किया, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे रीज़न क्या है? 100 से नीचे एंगल को ज़ीरो पहले लिखते नहीं बेटा, अभी आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बेटा मैथ्स के अंदर एक चीज़ अंडरस्टैंड करें प्लीज़, कि साइन एक्यूट फैक्ट, ये याद रखेंगे ठीक है, कि साइन के एक्यूट का फैक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो साइन एक्यूट इट इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस एक्यूट। इसका मतलब क्या है कि साइन का 30 जो है वो बराबर होगा साइन का 180 माइनस 30 से। मतलब कि साइन 30 इट शुड बी इक्वल्स टू साइन 150। आप कैलकुलेटर कर लें, ठीक है, आप कैलकुलेटर कर लें। तो एक एंगल आपके पास साइन 30 आ रहा है और साइन 150, दोनों को कैलकुलेटर करें, दोनों का आपका आंसर सेम होगा। जस्ट चेक चेक इट आउट प्लीज, जस्ट चेक इट आउट। जी फातिमा आप क्या कह रही हैं? एक मिनट बेटा। अपॉलॉजीज बेटा, सॉरी आई हैड टू अटेंड अ कॉल। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि साइन का एक्यूट जो है वो साइन के ऑब्ट्यूज के बराबर आ रहा है। तो एक एंगल मुझे 24.7 ले लिया मैंने, तो और एक एक्स का आंसर मैं चेंज करके ले सकता हूँ, और वो आंसर क्या है? नहीं बेटा आईजीसीएसई का पार्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मई जून 2022 का पेपर है, ओ लेवल्स के पेपर में आया हुआ है ये आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, आप लोगों को ये भी आइडिया क्लियर हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ। पहली बात तो ये कि इस पहले केस में ये वाला एंगल भी हम लोग निकाल सकते थे स्ट्रेट अवे यहाँ पे नॉर्थ लगा के, तो वो एंगल आता हमारे पास 180 में से 72 माइनस करते तो 108 आ जाता, ठीक है, ये एंगल 108 आ जाता। अच्छा अब यहाँ पे एक नॉर्थ जो है वो मैं डी पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। एक नॉर्थ आप डी पे ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल जो है ये भी आपके पास आता 72, ये भी आता आपके पास 108 में से आप 180 में से 108 माइनस करते तो ये 72 हो जाता। अब 120 में से 72 को माइनस कर दें, तो 120 में से 72 को अगर मैं माइनस कर दूं, 120 माइनस 72, तो मेरे पास ये एंगल आ रहा है 48 का। तो मुझे पता है कि ए और डी दे आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता था एक्स को, बिकॉज आई नो दैट 180
-72 -48, सो द आंसर इज 60। एक आंसर मेरे पास x का 60 आ रहा है, जहाँ पे किसी किस्म का वो इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे द पॉइंट इज, अब यहाँ पे पॉइंट ज़रा समझने की कोशिश करनी है, यहाँ पे ज़रा एक पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दो तीन चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे ज़रा समझ लें। यू मे ऐड लाइन्स टू द स्केच टू हेल्प यू आउट, ठीक है। वी कैन यूज़ द स्केचिंग, हम लोग स्केचिंग की हेल्प भी यहाँ पे ले सकते हैं, ताकि हम लोग अपने आंसर्स निकाल सकें। पहली बात तो ये कि जो हम लोगों ने साइन रूल अप्लाई करके हम लोगों ने ये आंसर निकाला है, सर कीबोर्ड में सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं बेटा, ये डिस्कशन करते हैं ज़रा प्लीज़, ठीक है। ये अभी हमारा हम लोग यहाँ पे बेरिंग को डिस्कशन कर रहे हैं, ये आंसर करता हूँ, ठीक है। आगे कीवर्ड का एक क्वेश्चन आएगा। सो लेट मी रीस्टार्ट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को दोबारा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा है यू मे ऐड लाइन्स टू दिस स्केच। मेरे पास अगर मैं साइन का ऑब्ट्यूज ले लूँ, अगर मैं एक्स का एक आंसर 150 कहता हूँ, ये 180 -24.7 ले लूँ, तो 180 में से 24.7 को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये आता है 155.3। तो मेरी सेकंड बेरिंग जो बनेगी डी की तरफ जो मेरी सेकंड बेरिंग बनेगी, वो मेरा एक्स का एक्सटीरियर एंगल होगा, वो मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि साइन का एक्यूट और ऑब्ट्यूज जो है वो बराबर आता है। लेकिन आई थिंक सो कि ये वर्किंग यहाँ पे वैलिड वैलिड नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू मे ऐड लाइंस टू दिस स्केच टू हेल्प यू आउट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ज़रा इसको इरेज करके एक रीट्राई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ताकि इस क्वेश्चन को सही तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ज़रा प्लीज़ एक और अटेम्प्ट करेंगे। टाउन डी इज़ 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी। अच्छा, टाउन बी ऊपर है और वहाँ पे 300 लिखा है, यहाँ पे भी 300 लिखा है, यहाँ पे हम लोग 72 डिग्री लिख देंगे। बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, मैं यहाँ पे नॉर्थ लगा रहा हूँ, ताकि मुझे यहीं पे इसका मैं आंसर लिख दूँ। तो ये आएगा बेटा 180 -72, तो ये आ जाएगा बेटा 108। अच्छा, वो कहता है एंगल ए डी बी जो है बेटा वो 120 है, तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है, तो मैं कहता हूँ कि डी कुछ इधर होगा, तो ए डी बी 120 होना चाहिए। तो ये 90 से कम लग रहा है। हाँ, ये अब कुछ लग रहा है 120, ये लाइन अब कुछ लगेगी A D and B। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा, A D and B तो हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं वैसे, AD एंड दिस इज B। लेट्स से दिस इज 120 डिग्री। अच्छा, एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करो बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। तो मैं डी पे नॉर्थ लगाते हैं ज़रा, हम लोग ज़रा डी पे नॉर्थ लगाते हैं ऐसे। तो बेटा जब डी पे नॉर्थ लगाएंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स की मदद से हम लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो हम लोगों को यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि वी नीड टू फाइंड आउट केस वन, क्योंकि वो कहता है कि बेरिंग, ये केस वन हो गया हमारा। केस वन कहता है फाइंड टू बेरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए, सो इट मीन्स दैट लुक एट डी फ्रॉम ए, तो स्टैंड एट ए पे खड़े हो जाए एंड लुक एट डी, तो मुझे ये एंगल चाहिए। तो पहले हमारी वो वर्किंग जो साइन रूल वाली थी वो बिल्कुल ठीक थी, तो हम लोग उसका ही सहारा जो है वो ले लेंगे। और टाउन डी इज़ 145 किलोमीटर फ्रॉम, तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 145। और ये एक्स हम पहले निकाल चुके थे, लेट सपोज इसको एक्स का नाम देते हैं, तो साइन एक्स इज डिवाइडेड बाय 145 और इट इज़ इक्वल्स टू साइन 120 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है जी। 120 डिवाइडेड बाय 300, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 145 डिवाइडेड बाय साइन 120 डिवाइडेड बाय 300। अब साइन इनवर्स ऑफ द आंसर ले लें, सो एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ आंसर। तो ये वर्किंग हमारा ठीक था, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। क्या आया था आंसर इसका, आपको याद है आप लोगों को? 360 में से 120 क्यों माइनस कर रही हैं आप? तो वो तो आप ये एंगल निकाल लोगे ना, ये एंगल, इसको मैं क्या करूँ इसको निकालने का? साइन 24.7 आया था, थैंक यू सो मच। तो दिस इज 24.7, दिस इज 24.7, so that is what my case one is। तो बेरिंग, पहली बेरिंग आ गई मेरे पास। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक था। 72 + 24.7, एक्चुअली वहाँ पे मैस बन गया था, तो इसीलिए वो समझ नहीं आती थी। 96.7, तो बेरिंग को 3 डिजिट लिखते हैं, तो 096.7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, केस टू बनाते हैं जी। अब केस टू बनाने के लिए
हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे बना बी, ये यहाँ पे आ गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ए, पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है जी, जरा मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब याद रखें उन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि डी लाइन से नीचे ही है, हो सकता है ये डी लाइन से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब डी को ऊपर बनाएंगे, ठीक, लाइन से। So this is angle D now. Now this angle is 145. This distance is 145. This is 300. And this is what? This is my angle D, which is given to me, which is 120. So we know that this total thingy is 72. हमें इसका पता है कि that this total angle is 72. We know that total is 72. तो मैं ज़रा टोटल को यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये टोटल को मैंने बेटा पूरा शेड कर दिया, ठीक है, ये मैंने पूरा शेड कर दिया कि ये टोटल जो है वो 72 डिग्री है। आई एम फाइंडिंग एक्स, तो मैं ये ये ट्राइंगल बाहर निकालूंगा, राइट एंगल नहीं है, तो यहाँ पे 120 इधर गया, ये आ गया 300, ये आ गया बेटा 145, और ये आ गया एक्स। देखिए जी, सेम सिचुएशन बनी है, सेम सिचुएशन, साइन एक्स डिवाइड बाई 45 और साइन 120 डिवाइडेड बाई 300। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चों को ज़रा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने डायग्राम दो दफ़ा बनाया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 24.7 फिर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी बेरिंग जो होगी मेरी, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी होगी क्लॉकवाइज। तो हम लोग लिखेंगे बेरिंग नंबर 2, bearing 2 is 72 minus 24.7, और ये किसी बच्चे ने बताया भी था, तो 72 minus 24.7, so this is 43.7, 47.3, so that is not my answer, technically it is 047, तो ये आएगा 047.3। तो हमारे दो आंसर्स आते हैं, एक आता है 096.7 और एक होता है 047.3। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपके लिए। काफ़ी डिटेल में समझाया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिर्फ साइन रूल एक दफ़ा लगा है, बाकी प्लस माइनस का गेम था जी। समझ आया बेटा सबको कि नहीं? यस और नो? समझ आया? चलें, इसी तरह का कोई टेढ़ा क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें एक एक टेढ़ा क्वेश्चन जो है, इसमें एक और फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें थोड़ा सा घुमा फिरा सके। या दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इतना पुराना नहीं है, 2 अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, ज़रा प्लीज़ गौर कीजिएगा। दे से दैट कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी को कैलकुलेट करना है, दिस एंगल दे वांट अस टू कैलकुलेट। अच्छा, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए बेटा आई नीड दिस बी डी लाइन, मुझे इस बी डी लाइन की ज़रूरत है। बी डी इज़ नॉट देयर, बट वी कैन डू दिस कैन कम बेटा, दिस कैन कम। ठीक है, तो बी डी हमें पहले फाइंड करना है, तो बी डी के लिए पहले वी विल बी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। नीचे आपको नजर आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो पैथागोरस थ्योरम से आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी डी पहले निकाल लो। तो बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी डी इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 95 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर, 160 स्क्वायर, तो 160 स्क्वायर। तो बेटा बी डी का आंसर क्या आ रहा है मुझे बताइएगा, बी डी का आंसर क्या आ रहा है? बी डी का आंसर 186.07। क्या ये सर्ड में नहीं आ रहा था? स्क्वायर रूट 95 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर। अच्छा, नहीं आ रहा सर्ड में, मेरे पास भी 186 आ रहा है, 186.077। तो अभी ऐसा है ना, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो आई विल टेक 2 डेसिमल्स, तो मैं 2 डेसिमल ले लूँगा, 186.07 ले लेंगे यहाँ पे। न अब ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर जो है कोसाइन रूल लगेगा, एंड कोसाइन रूल लगेगा तो फार्मूला शीट में आपके पास ये फार्मूला गिवन होगा। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला शीट में गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। यू आर फाइंडिंग कॉस सी, तो आप यहाँ पे लिख दो कॉस सी, तो सामने लिख दो सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के बाकी दो लेटर्स क्या हैं, बी और डी हैं, तो आप लिख दो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। अब आपका बन गया जी, आपका कोसाइन रूल तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिकली कॉस सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, मैंने कल भी सिखाया था, दोबारा सिखा देता हूँ। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2bd नीचे आ जाएगा,
इज इक्वल टू कॉस सी। आप इसको ब्रैकेट में डाल, अब फ्रैक्शन में डाल के आंसर निकालो और फिर कॉस इनवर्स भी ले लेना। तो हम लिख देंगे कॉस इनवर्स इज कॉस इनवर्स, सो सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ द आंसर। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के अंदर पुट करूंगा, आप लोग भी पुट करिए। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन कम इन्वॉल्विंग कोसाइन रूल इन पेपर? ओनली वन, एक दफ़ा आएगा कोसाइन रूल, एक से ज़्यादा नहीं, जितना मैं कैमरेज को समझता हूँ। शिफ्ट एंड कॉस इनवर्स फ्रैक्शन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारे पास वैल्यूज़ को पुट इन नहीं किया मैंने यहाँ पे वैसे, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट इन कर देते हैं। सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अच्छा जी, सी स्क्वायर क्या है, स्मॉल सी आपके पास ये है, दिस इज योर स्मॉल बी एंड दिस इज योर स्मॉल डी। तो वैल्यूज पुट इन कर दें बेटा। तो 186.07 स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 107 स्क्वायर माइनस 165 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 107 इंटू 165। तो सर एंगल सी आपको मुझे नहीं पता कि एंगल सी राइट एंगल है, मैंने तो राइट एंगल मार्क नहीं किया बेटा। राइट एंगल मार्क करता ना, तो राइट एंगल मार्क करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स लगा देते। ठीक है, बॉक्स नहीं लगाया मैंने, खाली वो शेड करके दिखाया कि आई एम फाइंडिंग एंगल सी है। सो टेल मी व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर आ रहा है बेटा कॉस इनवर्स का? 83.414। सो 83.414, अच्छा जी 41 मतलब ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 83.4 डिग्रीज टिल 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर। ठीक है जी, चलें जी, गुड जॉब, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अ लाइट इज अटैच टू द सीलिंग वर्टिकली अबव बी। अब एक ऐसी लाइट है जो कि वर्टिकली अबव बी जो है वो अटैच की गई है। तो याद रखें ये यहाँ पे आपका 3D प्लेन है, तो वो वर्टिकली यहाँ पे अटैच होगी। तो वो याद रखें कि वो वर्टिकली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट को अटैच करेंगे बी के ऊपर। ठीक है, तो मैं एक लाइट को अटैच करता हूँ बी के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ पे लाइन बनाऊंगा बी सी। मैंने एक बी सी लाइन बनाया विच इज़ इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, बी सी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लाइट अटैच करता हूँ वर्टिकली अबव बी। ये हो गया, ये एक लाइट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दिस इज माई लाइट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट, ऊपर लिख देते हैं छोटा सा। ठीक है, अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम सी इज 1.8.2। अच्छा, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम सी, अगर मैं सी पे खड़ा हो जाऊं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 8.2 डिग्री। अब हमारे पास बी टू सी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो 107 है। कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए। सो ऑल आई नीड इज द हाइट ऑफ द लाइट, मुझे हाइट ऑफ द लाइट चाहिए पहले। तो ए से मैं बाद में कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ए से कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब ए से कैलकुलेट करेंगे तो बी है, तो लाइट जो है वो अब हमारे पास वर्टिकली अबव बी है, तो वो यहाँ पे लाइट इधर है और ये ए है। ये अब 3D में ट्राइंगल बना होगा, ये याद रखिएगा। अभी मुझे यहाँ पे बी ए जो है वो मेरे पास 95 है, लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि ऑटोमेटिकली ए के ऊपर प्लेस होगा, ऑटोमेटिकली आई हैव नथिंग ऑन द राइट साइड, आई नीड द हाइट ऑफ द लाइट। क्या हाइट ऑफ द लाइट क्या चीज़ है? So to find out the height of the light, this is my perpendicular and that is my base. और जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आए तो 99% टेंजेंट थीटा लगता है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो अब मुझे परपेंडिकुलर निकालनी है, तो वी विल बी अप्लाइंग टेंजेंट 8.2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट। इधर लिख देता हूँ मैं हाइट ऑफ लाइट, हाइट ऑफ लाइट जो कि मेरा परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बेस विच इज 107। सो हाइट ऑफ द लाइट कितनी आ रही है बेटा? हाइट ऑफ लाइट, तो आप लोग लिखें 107 को मल्टीप्लाई करें टेंजेंट 8.2 से कि लाइट कितनी ऊपर लगी है। तो टेंजेंट 107 मल्टीप्लाई विद tan ऑफ 8.2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया बेटा 15.41। तो मेरे पास जो हाइट ऑफ द लाइट आ रही है 15.41 है। इसका मतलब है कि बी टू एल इज 15.41, बी टू एल इज 15.41। ठीक है जी, अब अंडरस्टैंड करें कि अब मुझे ए से देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ पे मैं अगर ए से देखना चाहूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे रोटेट कर दूंगा। ठीक है, इस डायग्राम को। तो यहाँ पे याद रखें कि पेपर में तो आपके पास ये रोटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने ये जो जितने भी एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने हैं वो पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए।
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए, तो आई एम स्टैंडिंग एट ए नाउ, मुझे ये चाहिए। तो देखें जी दोबारा टेंजेंट लगेगा, अब मुझे यहाँ पे इस दफा एंगल चाहिए, तो हम लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द लाइट 15.4 डिवाइडेड बाय 95, तो ये 95 है। तो जी निकालें टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल आईजी में क्वेश्चन आते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस सिंपल। चलें जी टेंजेंट इनवर्स ले लें, क्या आ रहा है आंसर बेटा? टेंजेंट इनवर्स 9.207, 9.207, तो टिल 1 डेसिमल प्लेस इट इज़ 9.2 डिग्री, तो 9.2 डिग्री का है। अब वो इसलिए इतना कम कम एंगल क्यों आ रहा है, अब याद रखें बेटा, वर्टिकली अबव आपने जब भी बनाना है ना, ये याद रखिए, मेरा मेरा एक सजेशन याद रखें कि वर्टिकली अबव आपने जब बी बनाना है तो उसके लिए आपने पहले एक लाइन हॉरिजॉन्टली ऐसे बना लेनी है, बी और सी। अब वर्टिकली अबव बी करना है तो लाइट यहाँ पे ले आओ, ओके। अब वो, अब अगर आपने ए के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है तो आप ए बी वाली लाइन बनाओ, ठीक है। ए बी वाली लाइन बनाओ, तो मैं ए बी वाली लाइन बनाऊंगा तो मैं बी ए यहाँ पे लिखूंगा। अब ये हाइट ऑफ द लाइट वो यहाँ पे आ गई, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा होता है ना, देखें जैसे मैं आप लोगों की स्क्रीन के बिल्कुल सामने आप लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ऐसा है ना कि लेट सपोज मैं अपने मैकबुक को थोड़ा सा हवा में कर दूं, तो बिल्कुल मेरा जो विजन है इस टाइम पे बिल्कुल स्क्रीन के साथ जो है ना वो बिल्कुल 0 डिग्री पे है, ठीक है। मैं किधर भी नहीं देख रहा। इफ आई वॉन्ट टू लुक एट माई क्लॉक, अगर मैं क्लॉक को या अपनी लाइट को देखना चाहूँ तो आई हैव टू मूव माई हेड अप लाइक दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। But if for example if I place my MacBook right now downwards again, तो आप लोगों को शायद ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा देख रहा हूँ, ये बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर मेरा विजन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। इफ आई वांट टू लुक एट द चार्ट बॉक्स तो आई हैव टू मूव माय हेड डाउन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दिस क्लियर? सो दैट इज द रीजन दिस कार्टून will play a vital role in bearing and as well as angle of elevation, ठीक है। I hope it's clear। चलें जी आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए देख लें जरा, ये भी थोड़ा टेढ़ा बेड़ा क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा। द डायग्राम shows the position of three towns P, Q, R and Q is on a bearing of 5052, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? look at Q from P is 52, so look at Q from P is 52, तो ये 52 है। तो यहाँ पे फ़ौरन से नॉर्थ लगा के 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 52, तो ये 128 है, ठीक है जी। ये हमें मिल गया यहाँ से। आगे चलते हैं, बाकी तीन। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी मीन्स दैट कैलकुलेट, look at R from Q। what do you need, आपको चाहिए क्या? look at R from Q, तो look at R from Q, तो Q पे नॉर्थ बनाया है तो आपको ये एंगल चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट of question। So what happened here, Tayyiba? I can get this angle if I have this angle and I subtract this angle and 128 from 360, I can get the requirement of the question. I need this angle. Again, we are going to use cosine rule and we are going to find cos q. So I will start from the small q. So q square is equals to r square plus p square minus 2rp cos of q। So cos q को सब्जेक्ट बनाते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा अभी, तो q is equals to cos inverse of q square minus r square minus p square divided by minus 2rp। so वैल्यूज को पुट इन करें और मुझे आंसर बता दें आप लोग। जस्ट पुट इन द वैल्यूज, तो वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्मॉल q है, ये स्मॉल p है और ये स्मॉल r है। एक बच्चा कैलकुलेटर में करे और एक दो बच्चे करो ताकि मुझे डायरेक्ट मिल जाए आंसर। कोसाइन रूल हम 3-4 दफ़ा लगा चुके हैं तो बार बार एक ही चीज़ वो करने की ज़रूरत नहीं। कॉस इनवर्स ऑफ, चलें जी हरी अब क्यू, मैं इधर वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 17.2 स्क्वायर माइनस 11.5 स्क्वायर माइनस 14.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 11.5 इंटू 14.6। चलें जी कॉस इनवर्स ले लीजिए प्लीज।
सर ये 128 किधर से आया? बेटा 128 कहीं से भी नहीं आया। आपको इतना पता होना चाहिए मैथ्स में कि को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइन दिस प्लस दिस ए प्लस बी इट शुड बी इक्वल टू 180। तो मेरे पास ये 52 था, मैंने यहाँ पे भी एक सीधा नॉर्थ लगा दिया तो मुझे पता लग गया कि 128 है। सो दिस इज 81.5 अकॉर्डिंग टू यमुना। सो एंगल क्यू इज 81.5 वन डेसिमल प्लेस। So I need to find out the bearing now. So bearing is what? Bearing कितनी है आपके पास? Requirement of the question is 360 minus 128 minus answer 81.5. So the final answer is, final answer क्या आ रहा है बेटा? 360 minus 128 minus 81.5, 278.48. So 278.48, it is already in 3 digit, तो मैं 1 decimal place आंसर जरूर दूंगा। तो 3 आपका 3 डिजिट में भी है। नहीं ये बहुत ज़्यादा बताया यार आपने, ये बहुत ज़्यादा आंसर बता दिया। 360 में से पहले 128 माइनस 150.5, 150.5। सो 1 डेसिमल प्लेस भी है और 3 डिजिट भी है बेरिंग। इट्स 150.5। इट्स फाइन। आगे चले, चलें जी। अब जरा गौर कीजिएगा जरा क्वेश्चन में। ए इज अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट फ्रॉम ए इज 68 correct to the nearest degree, and the distance of the base of the mast from A is 45 meter correct to the nearest meter. Calculate the lower bound of the angle. So A has nothing to do with the previous diagram, so it is totally a separate question. It means that examiner combined most of the cases, examiner can combine limit to accuracy with a trigonometry question. They say that A is a point on a horizontal ground. So let me make A here. A is a point on a horizontal ground. The angle of elevation of the top of vertical mast from A is 68 degree. For example, this is your mast. This is your top of the mast. Okay. The angle of elevation of the top of the vertical mast from A is 68 degree. From A is 68 degree. इसका मतलब है कि अगर A के ऊपर मैं खड़ा हूँ so I can see the mast if I move my head 68 degrees upwards. Okay. Correct to the nearest degree, this has some error. So it means that 1 degree. So 1 divided by 2 is 0.5. So the upper bound of 68 would be 68 का upper bound कितना होगा? 68.5 और lower bound होगा 67.5. Lower bound of angle and this is upper bound of the angle. The distance of the mast from A is 45 meters. This distance is 45 meters. This distance is technically 45 meters. Correct to the nearest meter. This is also nearest meter. So 1 meter, so 1 divided by 2 is 0.5. So add 0.5, 45.5, subtract 0.5, it is 44.5. Calculate the lower bound for the height of the mast. आपको height of the mast का lower bound निकालना है. You need, this is the requirement of the question. आपको ये निकाल। चले जी, अब हम करेंगे क्या? हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। We know that this is perpendicular and that is base. इसका मतलब है कि tangent theta इस्तेमाल हो रहा है। देखिए फिर angle of elevation आया, tangent इस्तेमाल होगा। We know that tangent theta it is equals to height of the mast divided by distance which is b, या technically base लिख देता। ठीक है जी। Now I want to find out the lower bound for the height of the mast. मुझे lower bound for the height of the mast निकालना है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको इसका लोअर बाउंड निकालना है तो ऑब्वियसली बात है कि सामने आपने एंगल का भी लोअर लेना है, लेकिन नीचे जो बेस है इसका अपर लेना है। डिवीजन का फॉर्मूला है। आप इसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हाइट ऑफ द मास कम से कम हाइट ऑफ द मास जो है वो कितनी होगी जब आपके बेस जो है डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन वी ऑलवेज या मोस्ट ऑफ द केसेस एंगल ऑफ एलिवेशन में जो है वो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि वो बेस का और ये गिवन होता है, लेकिन अगर आपको सामने वाला और ये वाला गिवन हो तो आपका साइन इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील मेक द फॉर्मूला फॉर दैट। हमें हाइट ऑफ द मास के लिए फॉर्मूला बनाना है। सो बेटा यहाँ पे टैंजेंट थीटा क्या लेना चाहिए हमें? हाइट ऑफ द मास का लोअर बाउंड निकालना है। व्हाट शुड आई टेक एज अ टैंजेंट थीटा? 68.5 और सर लास्ट क्वेश्चन कॉज मैराथन ऑफ फिजिक्स। या बेटा आप लोग जा सकते हैं, जिनको जिन्होंने मैराथन ऑफ फिजिक्स में जाना है वो जाएं, हम लोग अपना यहाँ पे काम करते जाएंगे। ठीक है।
अच्छा जी 67.5 लोअर बाउंड ऑफ द एंगल लेंगे तो लोअर बाउंड ऑफ द एंगल होगा tangent 67.5. सो वी कैन टेक tangent 67.5. हाइट हमने निकालनी है और नीचे बेस का क्या लेंगे बेटा, बेस का क्या लेंगे 45.5 या 44.5. So it's 45.5. बेस का अपर बाउंड लिया. सो ज़रा मल्टीप्लाई कीजिएगा जी, हाइट ऑफ द मास कितनी आ रही है 45.5 मल्टीप्लाई विद tangent 67.5. सो द फाइनल आंसर इज, ज़ारा मुझे कह रही है कि आंसर है 109.84. ओके जी चलें जी, अब इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड भी करना है तो थर्ड सिग्निफिकेंट 9 है, तो 9 के बाद 8 है तो 9 में जब 1 ऐड होगा तो ये 110 बन जाएगा. सो 110 इज द फाइनल आंसर. जी समझ आया बेटा सबको. जी समझ आया. अच्छा Aisha is saying, but sir, if we multiply b with tan, then it would be lower bound of both. But technically, tangent theta, the original formula is perpendicular divided by base. Agree? समझ आई? The original formula is like that. Original formula वैसा है, वो ये formula है, ठीक है? And but I think so she is also right. हाँ ओरिजिनल फॉर्मूलाज के ऊपर आप रहा करें तो फिर उसके ऊपर आपको इजी हो जाएगा इसको इसको जज करना, ठीक है. या आई कैन शेयर, मैं ये अनअटेम्प्टेड वर्कशीट में बाद में शेयर जरूर करूंगा, ठीक है. ये रीसेंट क्वेश्चंस हैं. चलें आगे चलते हैं जी. Question number 11. The diagram shows a pentagon ABCDE with a center O. AB is 6 and O to A is small d. Show that D is equals to 5.1. So, beta, we know that it's a regular pentagon, so every length would be 6. And we know that if I draw imaginary lines with the center, so I know that angle at a center is what? Angle at a center is 360, and there are 6 triangles inside. So we know that these all angles are, let's suppose x. So this is x, that is x, that is x, that is x. So I know that 360 divided by 5 is how much? 360 by 5 is how much? 72 each. Very good, thank you. So this is 72 degree each. So they say that show that this d is equal to this thing. So this is d, let's suppose that should also be d. This is 72 and this is 6. So I got the idea that this is an isosceles triangle. So these two lengths are equal. It means that these two angles would also be same. So we know that 72 plus 2y, it should be equals to 180. So 2y is equals to 180 minus 72. So 2y is equals to 108 divided by 2 would be 54 each. सो आई गॉट 54 डिग्री ईच. तो मैंने ये ट्राइंगल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है जी. अब हुआ क्या, हमें डी को शो करना है. तो डी को शो करने के लिए जब भी यहाँ पे लिखा होता है देखिए करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, इट्स अ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन रूल अप्लाई कर लें बिकॉज साइन रूल निकलता है यहाँ पे. तो स्मॉल डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 54. देखो बेटा लेंथ अननोन है इसीलिए न्यूमरेटर में छोड़िए. And 6 divided by sine 72. So d is equals to 6 times sine 54 divided by sine 72. तो बेटा what is the value of d? जरा d की वैल्यू निकाल लो बेटा. 6 multiply with sine of 54 divided by sine of 72. तो 5.1039 आ रहा है. टू डेसिमल प्लेसेस पे इट इज 5.10. द रिजल्ट इज शोन. So that's how you can do that. It's a 3 marker question. So let's proceed then. Okay, it's a volume of a pyramid. The volume of the pyramid 1/3 is base area times height. This is given in the paper. और अब ये पेपर में कुछ ऐसा given होगा. और वो कैसा होगा?
1/3 capital A into H. So this A means what? This A means the base area. Okay. Now they say that the regular pentagon ABCD from the base of the pyramid, this is the regular pentagon and this is now the base of the pyramid. Okay, the length of each slope edge is 14. The length of each slope is 14. So this is 14. So this is also 14. So I got the idea that FO is not given, but this triangle I can make. I can make out this triangle. मैं triangle बना सकता हूँ. So बेटा ये आ गया है right angle triangle. खुशी ये है बेटा F, ये है बेटा O, ये है A. आपने पिछले पार्ट में निकाला है कि ये 5.10 है, तो AF 14 है. तो मैं यहाँ पे हाइट ऑफ द पिलर, हाइट ऑफ द पिरामिड निकाल सकता हूँ. एग्री? So this is height of the pyramid. So height of the pyramid would be equals to 14 square minus 5.1 square with a square root. Pythagoras theorem है, ये height निकाल रहा हूँ. So can you please tell me 13.303? That is what the height of the pillar is. Calculate the volume of the pyramid. Okay. Let's calculate the base area. Technically in maths, we do not have any formula for the area of the pentagon. बेटा 5.10 कहाँ से आया? ये आपने ए ओ पीछे नहीं निकाला था? ए ओ डी नहीं था? 5.0110 5.10 5.10 अब याद है 5.01 कहाँ से आया है? फुरकान समझ आ गई? Okay, now I can see one thing, Furkan, that there are these 5 triangles. So it means that if I find out the area of one triangle, I can multiply with 5 to get the area of the pentagon. So 5 times 1/2 product of two sides, 5.1 multiply with 5.1 multiply with sine of 72. This is what one triangle in. So that was 5.1, that was 5.1, and that was 72. Tell me what is the base area? Beta base area कितना आ रहा है? 61.84. एक और बच्चा भी करे यार, एक ही बच्चा मुझे आंसर कर रहा है अभी. तो ये बन रहा है बेटा 61.8 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. So volume of the pyramid would be 1/3 base area times height of the pyramid, and height of the pyramid was 13.03. So what is the volume of the pyramid? Pyramid का volume कितना आ गया बेटा? Thank you Arsalan and Asham. Okay, what is the volume of the pyramid? It's 268.48 268.418 सेंटीमीटर क्यूब. फाइनल आंसर है बेटा 268. मैं बार बार कह रहा हूँ 268 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 268 ml. फॉर कॉमन सेंस इसका मतलब है कि इसमें 268 ml कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी लिक्विड जो है वो आ जाएगा. ठीक है जी, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया. ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ये खुद ट्राई कर लेना. ठीक है, ये क्वेश्चन भी छोड़ देता हूँ और नीचे वाला भी. ओके, आगे चलते हैं जी ज़रा. चलें जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंटली फरवरी मार्च के पेपर में आया था. एंड स्टूडेंट्स दे रियली स्ट्रगल्ड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए याद रखें इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए भी आ सकता है आपके पेपर में. और लेट्स सपोज मैं इसके केसेस बना देता हूँ, और ये मैंने स्टार्ट में ही क्वेश्चन शो किया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मैं मिटा देता हूँ. एक चीज़ अंडरस्टैंड करें प्लीज़, ये क्वेश्चन इसमें सेमी सर्कल से थोड़ा सा ये आया था सेगमेंट वाइज. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जरा समझ डाल लो. द डायग्राम शोज द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. द सेगमेंट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल. इसका मतलब ये है कि ये जो सेगमेंट है आपके पास, ये जो सेगमेंट है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल. ये किसी टनल का क्रॉस सेक्शन है. अब वो टनल का क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? टनल के क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये कुछ टनल थी इस तरह की, और ये उसका क्रॉस सेक्शन है. तो ये टेक्निकली मैथ्स में हमारे पास प्रिज्म होता है. टेक्निकली मैथ्स में हमारे पास प्रिज्म होता है, इसको हम लोग मैथ्स में प्रिज्म बोलते हैं. ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ. ठीक है, अब अंडरस्टैंड जरूर करें. अब किसी भी प्रिज्म को वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए, दिस इज हेयर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टनल. यहाँ पे मैथमेटिकली द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म.
यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ लेंथ ऑफ द टनल की जो लेंथ है वो 800 मीटर्स है, और पेपर में फॉर्मूला गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए लिखा होगा AH, डिवाइड बाय 3 कर दो तो पिरामिड बन जाएगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फ्रंट। आपने इस फ्रंट का एरिया निकालना था, इस फ्रंट का एरिया निकालना था इस क्वेश्चन में। अब इस फ्रंट का एरिया निकालने के लिए डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उमायमा, अब मेरी आवाज़ आई होप आपको आ रही है। तो लेट्स सपोज मैं अब ये टनल की बजाय एक ट्रे बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज अ ट्रे इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। ये बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन है। ये एक ट्रे है, एंड फॉर एग्जांपल आई हैव केप्ट दिस ट्रे टू फीड बर्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल जो घर के बाहर हम लोग रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रे। ये एक ट्रे आपके सामने। नाउ यू कैन सी वन थिंग, एंड दिस ट्रे हैज सम वाटर, दिस ट्रे हैज सम water. For example, the volume of the tray is, let's suppose, 100 centimeter cube, and length of the tray is, let's suppose, 5.67. And I can ask you what is the area of what is the shaded region. So you would be using the formula V is equals to AL or AH. तो आप लिखोगे 100 is equals to A into 5.67। तो जब आप वॉल्यूम को लेंथ पे डिवाइड करोगे तो एरिया आ जाएगा। एग्री? यहाँ पे अभी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे लेट्स सपोज इस केस को भी अगर हम यहाँ पे मिटा दें, और पेपर में मोस्ट कॉमनली आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये केस पेपर में आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट केस जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है वो होगा ट्राइंगल बेस्ड प्रिज्म। नेक्स्ट आपको जो पेपर में देखने को मिल सकता है वो होगा ट्राइंगल बेस्ड प्रिज्म, समथिंग लाइक दैट, जो कि ऐसा होता है। तो इसके लिए आप हमेशा एरिया ऑफ द फ्रंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका एरिया निकालने का जो मेथोडोलॉजी था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ यू स्ट्रगल्ड, यहाँ पे एग्जामिनर खुद कह रहा है कि दैट दिस डिस्टेंस इज 3 meters एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5, सो आई कैन से दैट दिस इज 2.5, so 3 minus 2.5, so automatically this is the 0.5. If I have this thing, so I know that this is also 2.5. This is also a triangle. So using the triangle here, आप इस triangle को use करते हुए you will be finding this theta. This theta remains same for here as well. And if you subtract it from 360, तो आपको ये दो थीटा भी मिल जाते ऑटोमेटिकली। तो आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते, और ऊपर आप निकालते एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये जो पोर्शन है सारा ये एक सेक्टर है। आपके पास टोटल बेस एरिया आ जाता, उसको लेंथ ऑफ द टनल के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपके पास टनल का वॉल्यूम आ जाता। क्लियर हो गया बेटा? मैंने खाली सिर्फ एक्सप्लेन किया। आगे चलें अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रगल किया, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे कि सर ये क्या हो रहा है। इसका मैंने पूरा वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोड किया ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जो है आप लोग इसके अंदर अपनी हेल्प लगा सकते हैं, आपको खुद ही देखना है। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ट्राइंगल इज h एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज h+2 नजर आ रहा है हमें। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज x, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x+1, दैट इज ऑल्सो। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर यूजलेस स्टेटमेंट्स हैं। Area of the triangle is 11. Okay, so if the area of the triangle is 11, so we know that area of the triangle is 11. So 1/2 into base into height. So base is x, so height is h. And area of the rectangle is 39. So area of rectangle कितना है? वो 39 है, तो वो आएगा बेटा 39 is equals to x+1 into h+2. हमें एग्जामिनर कह रहा है write down an expression of text for in terms of x for the height of the rectangle. So बेटा height of the rectangle क्या होगी? लेंथ इंटू हाइट होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है टेक्निकली। सो लेंथ उसकी क्या है? x+1, ठीक है। सो लेंथ उसकी क्या है रेक्टेंगल की? x+1 है ना, एंड एरिया इज 39, तो 39 इज इक्वल्स टू x+1 एंड दैट इज टेक्निकली द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। सो x+1 को आप यहाँ पे ले जाएं, तो 39 डिवाइडेड बाई x+1 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द रेक्टेंगल।
ये हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आ जानी थी। फिर यहाँ पे नीचे शो दैट, अब वो कहते हैं कि क्या शो करें, दीज टू फॉर्मूलाज दे हैव एच कॉमन इन देम, एच इनके अंदर कॉमन है, ठीक है। और हमने x को शो करना है तो वी हैव टू मेक h द सब्जेक्ट। तो इन फर्स्ट फॉर्मूला I can write 22 is equals to xh, so h is equals to 22 by x. Now substitute that value in here, तो आपके पास ये शो दैट इक्वेशन नीचे आ जाएगी। जब आपके पास इक्वेशन आ जाए तो एग्जामिनर आपको कहेगा बाय फैक्टराइजिंग, तो मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, फाइंड टू पॉसिबल हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल, तो आपके पास h आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो पॉजिटिव आंसर h आपका आएगा h, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बेटा हाइट h+2 है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज तो जरा समझ डाले ना थोड़ी सी ना। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज h+2, तो मैंने ऑटोमेटिकली बस h+2 लिखा ही नहीं, मैंने हाइट ऑफ द रेक्टेंगल के लिए एक्सप्रेशन देना था। अब अगर मुझे ये फाइंड करनी हो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, तो इस h की जगह पे मैं h+2 लिखूंगा, जो नीचे आप, क्योंकि h जो है टेक्निकली h इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। लेट सपोज ये 10 है तो ये +2 12 होगी। फिर समझ आया फुरकान? आपने यहाँ पे जब आप x निकालोगे, x के दो आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। तो जब आपके पास x के दो आंसर्स आएंगे नीचे वाले क्वेश्चन में, x के आपके पास दो आंसर्स आएंगे, कहता है फाइंड द टू पॉसिबल हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो दो पॉसिबल हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकलेंगी? इसके फॉर्मूले से निकलेंगी ना। आप यहाँ पे x के दो आंसर्स को प्लॉट करोगे और आप चेक करोगे कि आपका आंसर्स क्या आ रहे हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल के। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मज़ा आया। हैव अ गुड डे। का बहुत ख्याल रखें। क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, जनरल डिस्कशन।